Hello everyone, welcome to today's edition of this daily news digest, where we are going to discuss some important articles from the Hindu and Indian Express. जो important articles हैं that will be relevant for your UPSC examination, especially for this year's attempt 2025. ठीक है? So let's start. I'm sharing my screen. We are starting with Indian Express. इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेन पेज पे आपको एक आर्टिकल मिलेगा दैट इज रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइस और रूलिंग विच इज रिगार्डिंग द अबेटमेंट ऑफ सुसाइड. सो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के कुछ केसेस हैं अंडर सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी. तो उसके ऊपर कुछ सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है रिसेंटली, एंड दैट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग along with what is this abatement of suicide, what are the provisions under the law that are important for our examination. तो ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दो तीन चीजें हम पढ़ने वाले. So first thing, let's see what Supreme Court has said. The Supreme Court highlighted that the need to sensitize investigation agencies and courts in abatement of suicide cases under Section 306 of Indian Penal Code 1860 IPC. ठीक है? A bench of Justice Abhay S. Oka and K.V. Vishwanathan stated that it is the time that investigating agencies are sensitized to the law so that the person are not subjected to abuse of process of a totally untenable prosecution. It further added that while the person involved in genuine cases where the threshold is met should not be spared, and providing the provisions of this section should not be deployed against individual only to assuage the immediate feeling of the distraught or the family of disease. तो ये बोल क्या रहा है अल्टीमेटली? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जहां पर जेन्युइन केस है, जहां पर थ्रेशोल्ड रीच हुआ है, जहां पर ये फुलफिल कर रहा है कि दैट इज द अबेटमेंट. अबेटमेंट का मीनिंग अभी हम देखेंगे कि ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है. वहां पर तो पनिशमेंट होना ही चाहिए, उसको तो छोड़ना है ही नहीं. बट इन सम ऑफ द केसेस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्या करती है to give this sense of satisfaction to or the immediate feeling of the distraught families जो अफेक्टेड हैं, उसको सेटिस्फाई करने के लिए कभी कभी इंडिविजुअल को फॉर एग्जाम्पल फ्रेम करती है, चार्जेस उस पर फ्रेम करती है. तो दैट कैन नॉट बी मिसयूज्ड. तो उसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके ऊपर ओनस है टू इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली और टू डिसाइड दैट वेदर इट इज अ केस ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और नॉट. ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट बोल रही है इट शुड बी the agency should be cautious and should exercise caution in using these provisions. ठीक है? तो ये है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट. नाउ जो स्टेटमेंट है किस केस में लिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो चेंजेस देर आर सम चार्जेस अगेंस्ट बैंक मैनेजर अक्यूज्ड ऑफ अबेटिंग द सुसाइड ऑफ अ मैन हु allegedly took his life after he was not able to repay his loans. तो लोन नहीं दे पाया इसलिए उसने सुसाइड कर लिया. सो इसका केस किस पे चला गया? बैंक मैनेजर के ऊपर, दैट यू हैव अबेटेड दिस सुसाइड. बट इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि यू शुड बी कॉशियस. ऐसा नहीं है कि फैमिली जो ग्रीव कर रही है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, इमीडिएट सेटिस्फेक्शन के लिए, इमीडिएट फीलिंग्स को सॉल्व करने के लिए आप इस टाइप के स्टेप्स ले रहे हो या अरेस्ट कर रहे हो. ठीक है? सो व्हाट इज दिस अबेटमेंट ऑफ सुसाइड? अबेटमेंट सिंपली मीन्स टू encourage. So it is defined here in this section 107 of IPC, which is same as section 45 of अभी जो रिसेंटली आया है भारतीय न्याय संहिता. तो न्याय संहिता का सेक्शन कौन सा है? 45. और आईपीसी का है 107 जो डिफाइन करता है अबेटमेंट. अबेटमेंट इज टू इंकरेज. सो व्हाट इज दिस अबेटमेंट टू सुसाइड? A person abates the doing of thing if she instigates any person to do that thing. So ultimately, if person is instigating someone to do suicide, so that is abatement of suicide. That is the first case. Instigation means उकसाना, कि वो उसको उकसा रहा है, उसको encourage कर रहा है. तो in that case it is regarded as, or it is being called abatement. ठीक है? तो in case someone is instigating the person to do some things like suicide, so that is called abatement. Second, to engage with one or more others in the conspiracy for doing of that. So ultimately कभी ऐसा है कि एक से ज्यादा लोग या फिर जो पर्सन है वो किसी के साथ engage कर रहा है to conspire for the abatement of suicide, or for someone to do that particular thing.
लाइक सुसाइड, तो वो भी अबेटमेंट होगा, ठीक है। इंटेंशनली एड बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट। सो अल्टीमेटली ये बोल रहा है कि या तो वो इंटेंशनली एड कर रहा है, हेल्प कर रहा है सुसाइड में, या फिर इलीगल ओमिशन कर रहा है। इलीगल ओमिशन सिंपली मीन्स कि यू आर नॉट एक्टिंग, आपको लॉ पता है कि दैट यू आर डूइंग इलीगल थिंग्स या समवन इज डूइंग इलीगल थिंग्स बट यू आर नॉट एक्टिंग ऑन इट, आप उसको रोक भी नहीं रहे हो और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो अबेटमेंट, ठीक है। इफ समवन, कोई आपके सामने छत पे चढ़ के कूद रहा है और आप उसको रोक नहीं रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो अबेटमेंट, ठीक है। तो यही बोल रहा है इलीगल ओमिशन है, बिकॉज इफ कोई भी लॉ है जो ये बोल रहा है कि उसको रोकना चाहिए आपको, बट आप नहीं रोक रहे हो, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, देन दैट केस ऑल्सो इट इज कंसिडर्ड इलीगल ओमिशन, एंड दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, ठीक है। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जो सिंपली हमें याद रखने हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें जाना नहीं है। एंड टू प्रूव अबेटमेंट ऑफ सुसाइड वन हैज टू इफेक्टिवली शो दैट द अक्यूज्ड डायरेक्टली इंस्टिगेटेड और एडेड द डिजीज टू डाई बाय सुसाइड, ठीक है। तो ये प्रूव करना पड़ेगा एजेंसीज को। तो पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड इज प्रोवाइडेड अंडर अंडर दिस सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी एंड विच इज 108 सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। तो ये याद रखना है, कैन बी अप टू 10 years इम्प्रिजनमेंट, जो पनिशमेंट रहेगी कितनी रहेगी, अप टू 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट अलोंग विद अ फाइन, ठीक है। इसके बाद एनसीआरबी का कुछ डाटा दे रखा है यहाँ पर कि एनुअल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट दैट द कन्विक्शन रेट इन सच केसेस वाज 17.5% इन 2022, ठीक है। फॉर कंपैरिजन द ओवरऑल कन्विक्शन रेट ऑफ ऑल क्राइम्स अंडर द आईपीसी वाज 69.8%. So in the cases of abatement of suicide, conviction rate is very low as compared to the national average and the average of all other convictions, ठीक है। It was for 54.2% for cognizable offenses which includes abatement to suicide where an arrest can be made without a warrant, ठीक है। cognizable offense क्या होते हैं, जहां पर without warrant के आप arrest कर सकते हो। So the percentage is 54.2% for cognizable offenses. So the abatement of suicide जो है ये भी एक cognizable offense, ठीक है। इतनी चीजें हमें याद रखनी है, केस की डिटेल में हमें नहीं जाना। सो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। हमने देख लिया कि अबेटमेंट होता क्या है, अबेटमेंट किस टाइप से हो सकता है, अंडर दिस कौन सा सेक्शन है जो डिफाइन करता है अबेटमेंट, एंड व्हाट इज द अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, और वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केस में पनिशमेंट क्या होगी, एंड व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड रिगार्डिंग द मिस यूज ऑफ दीज प्रोविजंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर्स है हमारे लिए। इस पर क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम हो सकता है, लेट्स सी। In the Supreme Court recently emphasized the need to sensitize investigating agencies and the courts in the cases of abatement of suicide under Section 306 of Indian Penal Code. Which of the following elements is essential to prove abatement of suicide under Indian laws? तो अभी हमने जो तीन चीजें देखी हमको फाइंड आउट करना है इन चारों में से कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं विच आर असेंशियल, ठीक है। द एक्यूज्ड मस्ट हैव डायरेक्टली इंस्टिगेटेड और एडेड द डिजीज टू कमिट सुसाइड। अभी हमने देखा द फर्स्ट प्रोविजन दैट उसने उसको इंस्टिगेट किया है, उसने उसको उकसाया है टू डू सच थिंग। सेकंड, द अक्यूज्ड मस्ट हैव पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्स्पिरेसी विद अदर्स टू कॉज द सुसाइड। ये भी हमने अभी देखा सेकंड प्रोविजन दैट देयर मस्ट बी कॉन्स्पिरेशन कॉन्स्पिरेसी टू लीड टू समवन सुसाइड, ठीक है। The accused must have shown disregard for the deceased mental state। इस टाइप का प्रोविजन अभी हमने देखा है, इसमें नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। The accused must have engaged in an illegal omission that led to suicide। अभी हमने देखा illegal omission होता क्या है, if something is legal but you are not acting on that thing, so that is also called illegal omission and that is the one of the factor which is essential to prove abatement, ठीक है। So the answer will be 1, 2 and 4, 3 विल बी रॉन्ग, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं अंडर द डेफिनेशन ऑफ अबेटमेंट अंडर आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल है। सेकंड आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। इसके आप इकोनॉमी पेज पे देखोगे इंडियन एक्सप्रेस के, यू विल फाइंड दिस आर्टिकल, पिकअप इन हायरिंग इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेक्टेड इन फाइनेंशियल ईयर 26, सीआईआई सर्वे। तो सीआईआई जो इंडस्ट्री बॉडी है, इसका एक सर्वे है जिसके अकॉर्डिंग कुछ फाइंडिंग्स है उसकी, दैट दी इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी पिक्ड अप, द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और उस सर्वे के अंडर में कुछ और फाइंडिंग्स है वो हम देखते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। मेजोरिटी ऑफ द प्राइवेट फर्म आर एक्सपेक्टेड टू स्टेप अप इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इन 25-26। तो ये इसका एक मेजर फाइंडिंग, ठीक है। Majority of the private firms are expected to increase the investment and employment in 25-26, ठीक है।
नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्या है इसमें? वेज ग्रोथ विच इम्पैक्ट्स पर्सनल कंजम्पशन, अ मेजर प्रोपोर्शन अराउंड 40% to 45% of sample firm surveyed saw an increase in average growth for in senior management, managerial roles and regular workers in the range of 10% to 20% in financial 25. ये ultimately बोल क्या रहा है? That there is a wage growth. जो वेज ग्रोथ हुई है वो किन किन सेक्टर्स में, किन किन पोजीशंस के लिए हुई? इट इज फॉर सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन एंड रेगुलर वर्कर्स एंड सुपरवाइजरी पोजीशंस। ठीक है, तीनों के लिए हुआ है। किस रेंज में हुआ है? 10 to 20% के रेंज में हुआ है इन फाइनेंशियल ईयर 25। ठीक है, तो ये सर्वे बता रहा है। एंड एक इसमें कॉज इफेक्ट फैक्टर दे रखा है, वेज ग्रोथ विच अल्टीमेटली इम्पैक्ट्स पर्सनल कंजम्पशन, जो हमें पता है कि वेज ग्रोथ होगा तो पर्सनल कंजम्पशन भी चेंज होगा एंड अल्टीमेटली लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड इन द इकोनॉमी। ठीक है, सो ये कुछ फाइंडिंग है एंड सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन फाइनेंशियल ईयर 24 आल्सो। देन next thing, the sound economic policies initiated by the government have helped revive the economy with a strong emphasis on public capex led growth। ठीक है, ये कुछ एडवांटेज है हमारी नई पॉलिसीज के। देन द सर्वे वाज कंडक्टेड पे इन इंडिया, ये सर्वे की कुछ डिटेल्स है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रखना है किसने सर्वे करवाया। नेक्स्ट फाइंडिंग क्या है? गिवन दैट 70% ऑफ द फर्म surveyed said that they plan to invest in financial year 26, an uptick in private investments might be on the horizon over the next few quarters। ठीक है, अल्टीमेटली जो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था, that 70% of the firm which are being surveyed by CIU, they said that they are going to see the increase in investment in the coming year। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज देखा जाएगा एंड दैट इज द पॉजिटिव सेंस दैट दे हैव एंड दिस इज व्हाट द सर्वे इज सेइंग। ठीक है, तो ये सर्वे के सारे पॉइंट्स होते हैं। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, लेट्स सी। According to recent survey by Confederation of Indian Industry, which of the following statement are true regarding private sector trends for 25-26? ठीक है, a majority of private sector या firms plan to increase investment and employment. That is correct. That is important finding. Second, the wage growth is expected to range between 5% to 10% for managerial and supervisory position. So that is a wrong answer. अभी हमने देखा it is 10 to 20% increase। ठीक है, economic policies and public capital expenditure are contributing to the recovery of India's economy। अभी हमने देखा इसमें कैपेक्स का रोल है, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो गवर्नमेंट है उसका रोल है टू रिवाइव द इकोनॉमी। 70% of the firm surveyed plan to reduce investment in financial year 26। So अभी हमने देखा last point in the article that 70% of the firm are planning to increase the investment, not reduce the investment। ठीक है, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा एंड सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। व्हाट विल बी द आंसर? 1 and 4। आंसर विल बी 1 and 4। ठीक है, डी। सो सॉरी, आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट, तो 1 and 3 विल बी आंसर। आंसर विल बी ए। ठीक है, दो स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए, सेकंड स्टेटमेंट गलत है एंड फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, तो दिस इज दी आर्टिकल फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो है द हिंदू से, जो हम डिस्कस करेंगे। 9 नेवीज और जॉइंट ट्रेड्स। यूपीएससी पूछता रहता है एक्सरसाइजेज जो होती है, नेवल एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइज एंड एयर एक्सरसाइजेस, जो भी कंट्रीज के बीच में होती है, या मल्टीलेटरल हो या बायलेटरल हो, तो ये एक्सरसाइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसका नाम हमें याद रखना है। सो दिस इज द एक्सरसाइज विच आर बीइंग participated by 9 navies which hold this strategic exercise or drill in strategic straits between Indian Ocean and Pacific। तो कौन कौन से इंडियन ओशन एंड पैसिफिक के बीच में स्ट्रेट्स हैं, उनका वहां पर कुछ ड्रिल्स हैं इस एक्सरसाइज के अंडर में, तो उस एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं। द नेवीज ऑफ 9 इंडो पैसिफिक कंट्रीज, है ना, इसको याद रखना, इंडो पैसिफिक कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया आर टेकिंग पार्ट इन मल्टीलेटरल एक्सरसाइज लॉ पेरोज। तो ये नाम याद रखना है हमको, लॉ पेरोज, होस्टेड बाय फ्रांस। ठीक है, किसने होस्ट किया? फ्रांस। इन द स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का, सुंडा एंड लोबोक, ये तीनों स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट है बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। तो स्ट्रेट क्या होती है? स्ट्रेट होती है नेरो वाटर बॉडीज जो दो लैंड मास को सेपरेट करती है। ठीक है, नेरो वाटर बॉडीज। तो अल्टीमेटली जब नेरो वाटर बॉडी है तो वो क्या हो जाएगी? वो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रूट हो जाएगा। ठीक है, और दीज आर दी 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रूट्स, ट्रेड रूट्स
एंड विच आर कनेक्टिंग इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो ये याद रखना है, हमें तीनों के लोकेशन को मार्क करना है। हमारे लिए कौन सी नेवी की कौन सी शिप पार्टिसिपेट कर रही है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कंट्रीज कौन कौन सी है जिसे यहाँ पर मेंशन है, ये आपको पढ़ना है। सेकंड थिंग, ये तीनों स्टेट्स हैं, इनकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पर है। सो लेट्स सी, here you can see this is Southeast Asian, this is Pacific Ocean, and here it is Indian Ocean. So that is the Malacca Strait, and then this is in between the two major islands of the Indonesia, Sunda Strait, and this is the Lombok Strait. Okay, all three straits are very strategic and very important for defense as well as global trade. Okay, and all three straits are connecting Indian Ocean with Pacific Ocean. So ultimately ये एक्सरसाइज उसी के लिए की जा रही है। ठीक है, सो हमें याद क्या रखना है, 9 नेवीज कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, उसका नाम क्या है एक्सरसाइज का, और उसका पर्पस क्या है और कहाँ पर ये हो रही है। ठीक है, मलक्का, सुंडा एंड लोबोक स्ट्रेट बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, तीनों इसकी लोकेशन में याद रखनी है, उसको एटलस में मार्क करना। ठीक है, so that is all from this particular article, and that's it for today. We'll meet again with another set of articles uh, from tomorrow's newspaper. So तब तक के लिए थैंक यू।